وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ 73 لاکھ سے زائد بچے اسکول نہیں جا رہے۔ یہ بچے جرائم پیشہ بن سکتے ہیں، آپ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور 2011 کو وزیر اعظم گیلانی نے تعلیم کا سال قرار دیا تھا۔ 2011 میں ان کے اپنے شہر ملتان میں اسکولوں کی کیا حالت ہے، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے تفسیر حسین کی رپورٹ میں۔ پیارا پاکستان اللہ کا احسان، ہم اس کی شان بڑھائیں گے۔ پاکستان کی شان بڑھانے کا عزم لیے بنیادی تعلیمی سہولیات سے محروم یہ طالب علم ہے حلقہ NA 151 چاہ دینے والا بوسن روڈ ملتان کے ایک پرائمری اسکول کے۔ گھر کی غربت اور گندگی سے اٹی ان گلیوں سے گزر کر یہ طلبہ اسکول تو پہنچ جاتے ہیں، مگر یہاں بھی انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پانی نہیں ہے، بالکل بجلی بھی نہیں ہے آپ کے سامنے، گرمی میں یہ پرابلمز ہوتی ہیں ہمیں، نہ کوئی مائی کا انتظام ہے، بچوں کو خود صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اس علاقے میں بجلی تو موجود ہے، مگر شاید حکومتی اداروں نے اس اسکول کو بجلی کی فراہمی غیر ضروری سمجھی، اور بے رحم اجارہ داروں نے کھلے آسمان تلے پڑھنے پر مجبور ان بچوں سے درخت کاٹ کر سایہ بھی چھین لیا۔ اور ہمارے درخت تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، یہ لوگ کاٹ دیتے ہیں۔ گرمیوں میں ہم کو بہت گرمی لگتی ہے، نہ لائٹ ہے نہ پنکھے ہیں۔ یہاں پڑھنے والے بچوں کی آنکھوں میں معیاری تعلیم اور بنیادی ضروریات کے خواب ہیں۔ ہمیں یہاں پہ بینچ اور بجلی اور پانی کا انتظام چاہیے۔ مجھے کمپیوٹر چاہیے، مجھے کمپیوٹر سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ان بچوں کی آنکھوں میں اچھے مستقبل کے خواب تو ضرور ہیں، مگر ان خوابوں کی تعبیر کے لیے حکومت کی مناسب توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ اس اسکول میں پڑھنے والے بچے اور ان کے والدین یہاں بنیادی تعلیمی سہولیات کے فقدان کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ سیاستدان ہمارے ملک کے سارے پیسے کھا جاتے ہیں۔ کل کو ہمارے بچے پڑھ جائیں گے نا، گیلانی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے، اسی لیے وہ اسکول ادھر نہیں بناتا۔ محرومیوں میں پڑھنے والے اس اسکول کے طلبہ بنیادی تعلیمی سہولیات کے فقدان کا شکار ضرور ہیں، مگر ان کے دل میں پاکستان کی خدمت کا جذبہ موجود ہے۔ کیمرامین رضوان مرزا کے ساتھ تفسیر حسین، پرائمری اسکول چاہ دینے والا بوسن روڈ ملتان۔ جی خوشبخش شجاعت صاحبہ، ہم نے آپ کو پرائم منسٹر صاحب کے حلقے کے اسکولوں کی حالت بھی دکھائی، اور وہاں پہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اگر ان کے بچے پڑھ گئے تو شاید وہ پھر گیلانی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ بتائیے کہ کیا واقعی آپ سمجھتی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب 2011 میں پاکستان میں کوئی تعلیمی ایمرجنسی نافذ کریں گے، اور کیا پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت موجود ہے جو کبھی حکومت کو صرف اس لیے چھوڑنے کی دھمکی دے کہ یہ حکومت تعلیم کے لیے بجٹ میں اضافہ نہیں کرتی؟ آپ نے بہت اچھی بات کہی اور بہت اچھا مشورہ دے دیا ہے، لیکن حامد میر صاحب یہ جو ایک بچے نے بات کہی نا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، دراصل جہاں بھی تعلیم آتی ہے وہاں لوگوں میں شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ سارا یہی ہے کہ لوگوں میں شعور نہ پیدا ہو جائے، ان کو اسی لیے تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے۔ میں جو آپ سے بات کر رہی تھی وہ یہ کہ ہمارے ملک میں ہماری صورتحال تعلیمی یہ ہے کہ ہم ابھی زمین کے اندر 100 فٹ اندر دھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو ابھی زمین سے اوپر آ کر سانس لینے کی اور ہوا کھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں احسن اقبال صاحب نے صحیح فرمایا کہ ایمرجنسی، ہمارا ملک تو تعلیمی، سماجی، معاشی ہر صورتحال میں، لیکن سب کے تانے بانے آ کر تعلیم سے ملتے ہیں۔ تعلیمی صورتحال میں تو ہم انٹینسو کیئر میں ہیں، سارے وائٹل سائنس ختم ہو چکے ہیں۔ تو اب دیکھیے ہم مسئلے تو بیان کر رہے ہیں، ابھی حسن صاحب نے بالکل بجا اسٹیٹسٹک بتائی اور بالکل صحیح بتایا کہ ام المسائل ہیں، لیکن ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں سمجھتی ہوں چھوٹے چھوٹے حل نکالیں، اور یہ بات کہنا کہ سب سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، حامد میر صاحب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی مسئلے پر یہ قوم ایک ہو کر بیٹھ جائے، یہ لیڈر ایک ہو کر بیٹھ جائیں گے اور یہ اس مسئلے کو سوچنا شروع کر دیں گے، جہاں مسائل ایشوز سے ہٹ کر بات ہو رہی ہو، جہاں ہم روزانہ ملک کے نان ایشوز پر بات کر رہے ہوں۔ آپ نے تو بڑی ہمت کر لی کہ اپنا 1 گھنٹہ دوسرے لوگوں کی بنسبت تو آپ نے ضائع کر دیا نا، کہ آپ تو تعلیم کا مسئلہ لے کر بیٹھ گئے، ایسا مسئلہ جو ہر بچے کا مسئلہ ہے جو اس وقت ملک میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک مشورہ دیا تھا، اگر کوئی انقلابی تبدیلی کرنا ہے، دیکھیں اتنے یہ کہنا کہ راتوں رات ہمیں یا 2 دن میں یا 20 سال میں یا 10 سال میں، یہ 500 سال تک میرا اور آپ کا یہ خواب ہے، احسن اقبال صاحب کا، مہنات صاحبہ کا، اور قوم کے لوگوں کا، محب وطن لوگوں کا، یہ 500 سال تک یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کوئی ایسا ہی انقلابی اقدام کرنا ہوگا۔ میں نے ابھی آپ کو ایک تجویز دی تھی، میں ایک تجویز اور آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ جتنے اسکولز آپ رجسٹر کرتے ہیں
उन स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल रजिस्टर करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और जो बहुत उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आप रजिस्ट्रेशन से पहले ये शर्त क्यों नहीं आयद करते हैं कि यहाँ सेकंड शिफ्ट में आप उन बच्चों को भी तालीम देंगे जो गरीब गुरबा जो बाहर फिर रहे हैं आपके स्कूल के बाहर। पहले आपने तजवीज़ दी मस्जिद मकतब, दूसरी आपकी तजवीज़ है, दूसरी तजवीज़ सेकंड शिफ्ट। और बात जी हामिद साहब, इस मुल्क में जहाँ निज़ाम सड़ा हुआ है और इस मुल्क में जहाँ लोग चाहते ही नहीं कि बच्चे तालीम हासिल करके उनके साथ आकर खड़े हो जाएं, उस मुल्क में आप तवक्को रखेंगे कि वो हुकूमतें जो मौरूसी तौर पर आपस में हुकूमतें बांटती आई हैं, वो कहीं तालीमी इदारे खोलकर और तालीम दिलाएंगी लोगों को? कभी ऐसा नहीं होगा। हमारा काम है सवाल उठाते रहना। जब तक कि ये निज़ाम तब्दील नहीं करेंगे आप। मनाज साहबा, ये एक तजवीज़ दी उन्होंने मस्जिद मकतब, दूसरी दी कि सेकंड शिफ्ट शुरू की जाए गरीबों के लिए। आपके पास क्या तजावीज़? जी, मैं स्कीमों से पहले खुशबख्त साहिबा बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि नाउ द डिबेट हैज टू कम। बहुत से इश्यूज बता रहे हैं, ये सारे इश्यूज आपस में इंटरलिंक्ड है। महनाज बीबी ने भी कुछ इश्यूज बताए हैं आपको, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इश्यूज इंटरलिंक्ड कैसे हैं। हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शामिल हैं। इस जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान तालीम के शोबे को हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तालीम के शोबे को नुकसान कैसे हुआ है। आपको खैबर पख्तूनख्वा से आदिल परवेज़ की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सूबा खैबर पख्तूनख्वा गुज़श्ता कई बरसों से शिद्दत पसंदों के निशाने पर है। तालीमी इदारे भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से महफूज नहीं रहे। अब तक सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2000 से ज्यादा तालीमी इदारों को निशाना बनाया गया। धमाका खेज मवाद के जरिए तालीमी इदारों को तबाह कर दिया गया। ये सिलसिला रुका नहीं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान न सिर्फ स्कूल तबाह किए गए, बल्कि मर्दान के इलाके लूनखोड़ के गर्ल्स कॉलेज में जारी तकरीब में शरीक तालिबात को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। मासूम तालिबात पर दहशतगर्दों के हमले में 30 के करीब तालिबात जख्मी हुई। खैबर पख्तूनख्वा से मुल्का कबायली इलाकों में भी तालीमी इदारे शिद्दत पसंदों के रहमो करम पर हैं। 2 सालों में खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले तालीमी इदारों की तादाद 500 से तजावज़ कर चुकी है। दहशतगर्द न सिर्फ तालीमी इदारों को तबाह कर रहे हैं, बल्कि इनकी जानिब से लड़कियों के कई तालीमी इदारों में पम्फलेट भी भेजे जाते रहे हैं, जिनमें इन्हें तालीम हासिल करने के बजाय घरों में रहने की तलकीन की जाती है। मथुरा में स्कूल वैन और नोथिया में निजी स्कूल में धमाके इसी सिलसिले की कड़ी हैं। इंशाल्लाह जंगी बुनियादों पे, वार फुटिंग पे जो हमारी स्कूलों की दोबारा जो तामीर है वो जारी है। सूबे में तालीमी नस्वा की शरह सिर्फ 28% है। एक तरफ गुर्बत और दहशतगर्दी से मुतासरा सूबे में 50% से जायद बच्चे तालीम से महरूम हैं, और दूसरी तरफ जेवर तालीम से आरास्ता होने के ख्वाहिशमंद तलबा बेकसी के आलम में किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन साहिबजादा मोहम्मद जानजेब के साथ आदिल परवेज़, पेशावर। आपने देखा आदिल परवेज़ एक सड़क के किनारे स्कूल के बच्चे खुले आसमान तले बैठे हैं, उनके साथ बैठे हुए आपको सूरत बता रहे थे। मनाज साहब, मुख्तसरन ये बताइएगा कि क्या ये कहना दुरुस्त है? सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम साहब दावा कर रहे हैं कि जो 2000 स्कूल तबाह किए दहशतगर्दों ने, वो तेजी के साथ रीबिल्ड हो रहे हैं, ये बात दुरुस्त है? सेक्टर प्लान उन्होंने बना लिया है, जो उनके सारे स्कूल्स तबाह हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसको दोबारा से डेवलप करें, बट द गवर्नमेंट इज़ क्वाइट फोकस्ड ऑन एजुकेशन। देखें, बजट आने वाला है इस वक्त, ठीक है, आपने बजटरी इंक्रीज की बात की। हमारा बजट 2006-07 में 2.7% था, 2.5% ऑफ GDP। इस वक्त कम हो गया है, ठीक है, और जितना बजट होता है उससे भी थोड़ा हम कम खर्चा करते हैं। 3% भी नहीं है? नहीं, 3% भी नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज 2% भी नहीं है, और 90.9% इसका मतलब है ये सैलरीज में जाता है। हाँ, ये जो हम सब्सिडीज देते हैं, वीट पे सब्सिडीज, बिजली पे सब्सिडीज, पेट्रोलियम पे सब्सिडीज, तो वो ज्यादा है। मैंने यहाँ लिखा है PIA और पेप्को की सब्सिडी से ज्यादा है। अच्छा, PIO और पेप्को की पाकिस्तान के तालीमी बजट से ज्यादा पैसे ले रही है। वो आपकी बजट अभी क्या बात करनी है हामिद साहब, अभी ये बात करनी है। देखें, हर जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, इसका मतलब ये है कि हम एक तरह से हम खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, और विदाउट रियलाइजिंग। ये आप पहले देखें, ये डिबेट होगी तो लोगों को पता लगेगा कि असलियत क्या है। दूसरी बात ये कि अब आ रहा है बजट, फिर यही बहाना होगा कि जी पाकिस्तान क्राइसिस में है और पाकिस्तान का ये हो गया वो हो गया। बजट में इंक्रीज करें 1%, और पार्टीज में मुकाबला होना चाहिए। आप सिर्फ 1% मांग रहे हैं? मैं कह रही हूँ 1% तो करें।
हमें 1% इजाफा कर लें, अगर आपको इतनी मुसीबत होती है अभी लिख के दें, इस पे आप 4% मतलब 1% आप करें ना, इस साल 1% कर दें और ये आप साइन कर दें कि जी हमारा इरादा है कि 4% तक इसको ले जाएंगे। बलोचिस्तान का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। देखें, एक पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट है और एक प्री कॉन्फ्लिक्ट है। वहाँ पर यह है कि जो हालात चल रहे हैं बलोचिस्तान के, वहाँ पर 2100 तक वहां पर तालीम नहीं आ सकती। अच्छा, इतने बुरे हालात आप जो बता रही हैं, मेरा ख्याल है आप तो यहाँ पे बैठी हुई हैं, लोग कहेंगे जी ये इस्लामाबाद में बैठ के बात कर रहे हैं, तो बलोचिस्तान की बात कर रही हैं महनाज साहबा। तो बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स ने एक स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी ऑफ बलोचिस्तान बनाई हुई है, वो आपको बताते हैं कि बलोचिस्तान के आला तालीमी इदारे यानी यूनिवर्सिटियों की क्या सूरत हाल है। मेरा नाम अबू बकर बलोच है और मेरा ताल्लुक ग्वादर से है और मैं बोलान मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। सर, बात यह है कि हमारे पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है और वो भी नाअहल और मोतसिब वज़ीर की वजह से तबाही की तरफ गामजन है। इस वक्त पाकिस्तान में 79 मेडिकल कॉलेज हैं, 35 पंजाब के हो गए, आपके 25 जो हैं सिंध के हो गए, 15 KPK के हो गए, लेकिन बलूचिस्तान का एक मेडिकल कॉलेज है। उसको भी 5 साल पहले मुशर्रफ साहब ने जो है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था, जो अभी तक उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं है। इसके अलावा हमारा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो भी करप्शन के मुकम्मल नज़र हो चुका है और तबाही की तरफ गामजन है। हमारा बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स और संडेमन हॉस्पिटल वो सिर्फ अफगान माजरीन के लिए मुख्तस है। उनको पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान में जो है जो सबसे बड़ी आबादी बलोचों की है। बलूचिस्तान के तमाम जो इदारे हैं वो बलोच कौमी वसाइल से चलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों क्या वजह है कि बलोचों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम लोगों ने अपना एक फ़ोरम बनाया हुआ है बलोच तलबा एक्शन कमेटी का, उस फोरम पे हमने एक रिपोर्ट बनाई हुई है एजुकेशन पे, और हमने मीडिया वालों को दिया है, सेंटर्स को दिया है, MNAs को दिया है, गवर्नमेंट के इदारों को दिया है, लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद कुछ भी वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरा नाम मकसूद बलोच है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट पंजगुर से है। मैं यहाँ बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की हालत के बारे में बात करूँगा। टोटल पाकिस्तान में अगर हम देखें तो 127 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ बलूचिस्तान में हैं। अगर हम इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को देखें जो कि आटे में नमक के बराबर है, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में भी आप देखें तो बलोचों को टोटली तौर पर इग्नोर किया जा रहा है। अब आप देखें कि IT यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जो बनी थी ग्वादर प्रोजेक्ट के लिए, ग्वादर प्रोजेक्ट पे आगे उसको रन करने के लिए, उसमें 98% जो है ना वो नॉन बलोच है और 2% सिर्फ बलोच स्टूडेंट्स की है। अगर आप इसकी इंतज़ामिया में जाएं तो इंतज़ामिया में 99% नॉन बलोच है और 1% बलोच है। तो आप बलूचिस्तान के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो उनकी दाखिला पॉलिसी हो या उनकी इंतज़ामिया पॉलिसी हो या स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हो, उनमें टोटली तौर पर बलोचों को इग्नोर किया जा रहा है। जी, हम बात करते करते आगे निकल गए, स्कूलों और कॉलेजों से आगे यूनिवर्सिटियों तक पहुंच गए, लेकिन बलूचिस्तान का एहसास महरूमी आपको दिखाना भी ज़रूरी था। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद महनाज बीबी साहबा ने बात कही है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फोकस है हुकूमत का एजुकेशन पे। कितना फोकस है, बात सही है या गलत है, इस पर बात करेंगे एहसन इकबाल साहब से एक वक्फे के बाद।